morning students. Today we are going to revise the first chapter of supplementary, how the camel got his hump. And in this chapter you have read about the result of any kind of laziness. In this chapter you may know that there is a camel who lived in a desert and others animals also lived there, but all the animals did their work properly, but the camel never do any work. And when other animals came to him and asked to do some work, then he replied, hum, just hum and no more. Then all the animals thought about it. They complained about this matter to the jinn. There is a jinn. Jinn was the owner of that desert. उस desert का वो मालिक था. Then after that, listening all the matter, jinn decided to give the punishment to the camel, and he gave the hump as a punishment, and it's as a result of the laziness of the camel. The hump always carried by the camel, and it is to be said that from that day animals always wears a hump on his back. And now Madam, I want to tell you about the some words those are including in the chapter. Listen Madam, these are the word meanings. First, jinn. What is the jinn? Jinn is a spirit that has strange power. You can write here powers also. That has strange powers and can assume any form. जिन, आपने कई बार स्टोरी में सुना होगा जिन. A spirit that has strange powers and can assume any form. किसी को किसी फॉर्म में वो assume कर सकता है. सेकंड है इसमें dust cloud. Dust means dust, धूल. Cloud, you can say a cloud is long, loose, sleeveless piece of clothing. लॉन्ग होता है, पूरा ढका होता है, लूज होता है, ढीला ढाला होता है, स्लीवलेस होता है, स्लीव भी नहीं होती है. मीन्स ऊपर से कपड़े को ऐसे लपेट देना, एक लबादा सा बना देना. डस्ट क्लॉथ मीन्स होता है वैसे धूल का लबादा, पूरा गाउन टाइप, बट उसमें ये स्लीव वगैरह नहीं होती है. थर्ड इसमें ले लीजिए आप रेमोन्स्ट्रेटिव. इट्स अ न्यू वर्ड फॉर यू आई थिंक. रेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स होता है प्रोटेस्ट करना. जब हमें कोई बात गलत लगती है तो हम उसका प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं, उसे हम कहते हैं रेमोन्स्ट्रेटिव. प्रोटेस्टेड एंड इन अदर वर्ड्स यू कैन से कंप्लेन. Okay, and fourth, idleness means laziness. And fifth one, hum. Hump, a raised
round raised part on camel's back। कैमल की बैक पर जो एक राउंड सा गोल सा बना होता है ना, फैट से बना हुआ, फैट से भरा होता है, वो उसे ही हम कहा जाता है, ठीक है। और इसमें बोला जाता है वाटर होता है, फूड होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये फैट से बना होता है हम कैमल के जो ऊपर होता है। और जब उसकी एक खास बात ये होती है, जिनने जो उसको पनिश दिया था उसके बाद पनिशमेंट जो दी थी, उसके बाद क्या है कि एक खास बात इसकी ये होती है कि जब उस कैमल को कई दिनों तक, क्योंकि उसे डेजर्ट में रहना पड़ता है, रेगिस्तान में, तो जब उसे कई दिनों तक ना कुछ खाने को मिलता है, ना कुछ पीने को मिलता है, ना वाटर ना फूड, देन हिज हम्प विल बी श्रिंक। तो उसका जो ये हम्प होता है, गोल सा एक पूब होता है ऊपर, बैक के ऊपर, उसकी पीठ पर, तो वो श्रिंक होने लगता है। मीन्स एज फूड एज वाटर ही यूज, मीन्स कैमल यूज ऑलवेज हम्प। उसका जो हम्प है, वो उसका जो फैट है वो कम होने लगता है, ठीक है। हम्प किसका बना होता है? फैट का। और फैट किससे बनता है? बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस। नाउ बेटा वी विल डिस्क्राइब अबाउट द, एट फर्स्ट आई रिपीट इट, जिन, a spirit that has strange powers and can assume any form. Second, dust cloak. A cloak is long, loose, sleeveless piece of clothing. Remonstrated, protested, complained. Idleness, laziness. And hum, a round raised area on camel's back. Now it's the turn of our question answer. Look at a glance. Yes, बेटा। क्वेश्चन है इसके, what task do you think were assigned to the dog and the ox? Tasks mean work, कार्य, काम। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो कि डॉग को और ऑक्स को कौन से काम दिए गए थे करने के लिए? The dog was assigned the task, जो डॉग को टास्क असाइन किया गया था, टास्क के लिए कहा गया था, टास्क जो काम उसके लिए फिक्स किया गया था वो था of fetching and carrying sticks। डॉग को क्या काम करना था? उसे स्टिक्स जो थी उठानी थी और लेकर आनी थी। While the ox was assigned the task of plowing। प्लाइंग होता है हल जोतना। While जबकि ऑक्स का क्या काम था? उसे हल जोतना था, उसे खेतों में जो जुताई का कार्य है वो काम करना था। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन, Why did the camel live in the middle of the desert? जो कैमल है वो डेजर्ट के बिल्कुल बीच में क्यों रहता था? भाई एनिमल्स के साथ नहीं रहता था। क्यों नहीं रहता था? Because the camel lived in the middle of the desert because it didn't want to work। क्योंकि वह कोई काम नहीं चाहता था, कोई काम ही नहीं करना चाहता था। It ate sticks, thorns and prickles। वह क्या खाता था? बस वहां बैठे बैठे क्या खाता था? स्टिक्स, छड़ियां, ये सूखी मतलब स्टिक जो होती है, और थॉर्न्स, कांटे, और प्रिकलेस मीन्स होता है कटीली झाड़ियां, उनको वो खाता था। इसीलिए वो नहीं जाना चाहता था, सिर्फ डेजर्ट के मिडल में ही रहता था ताकि उसे कोई काम ना करना पड़े और वहां बैठे बैठे उसे स्टिक्स, थॉर्न्स एंड प्रिकलेस खाने को मिलती रहे। एंड थर्ड वन, यस बेटा थर्ड वन है, बट मेड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री। ऑक्स, हॉर्स और उसको डॉग को किस बात ने नाराज कर दिया था? द मैन टोल्ड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स दैट द थ्री ऑफ देम वुड हैव टू वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर द वर्क नॉट डन बाय द कैमल। इसमें क्या होता है कि आदमी जो है ना, उसी ने इन सभी एनिमल्स को अलग अलग टास्क दिए हुए थे
कि भाई आपको ये काम करना है, डॉग को है वो फैचिंग एंड कैरिंग द स्टिक्स, ऑक्स है ट्रॉइंग द फील्ड एंड हॉर्स कैरिड अप द बर्डन। अब कैमल को भी कुछ काम दिया था। अब बेटा एक बात बताइए, 4 एनिमल्स का वर्क है, अगर उनमें से एक एनिमल काम नहीं करता है, एक एनिमल काम नहीं कर रहा है तो 3 को करना पड़ रहा है। अब जब उसका काम नहीं होता है कैमल वाला, तो जो आदमी है वो क्या कहता है उन तीनों से कि आप जो कैमल ने काम नहीं किया है उस काम को भी आप करो। जब कैमल का काम उन तीनों को करना पड़ेगा तो उन तीनों का काम क्या हो गया, डबल हो गया, डबल टाइम उन्हें काम करना पड़ा, दुगना हो गया मतलब, ठीक है। तो इसी बात से वो नाराज हो गए थे। The man told the dog, the horse and the ox that the 3 of them, कि तुम तीनों को, आदमी ने उन तीनों से कहा कि तुम तीनों को would have to work double time, कि आपको ये जो काम है वो डबल टाइम करना पड़ेगा, दुगना करना पड़ेगा। कौन सा काम, किस लिए, टू मेकअप फॉर द, मेकअप मतलब परफॉर्म करना, पूरा करना, कंप्लीट करना, फॉर द वर्क नॉट डन बाय द कैमल, जो काम कैमल के द्वारा नहीं किया गया है उस वर्क को तुम्हें करना पड़ेगा, और उसको करने के लिए दुगना ही करना पड़ेगा, डबल टाइम करना पड़ेगा। दिस मेड द 3 of them very angry, इस बात से वो तीनों बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, लुक हियर। Question number 4. How did the jinn know the horse was complaining against the camel? जब हॉर्स जाता है जिन के पास, सभी जाते हैं मिलकर, जिन इसमें हॉर्स बोलता है जाकर के जिन से क्या, कि भाई जो कैमल है he never do any work। तो जिन को कैसे पता चलता है कि ये कौन से कैमल के उसमें मतलब कि अगेंस्ट ही कंप्लेन कर रहा है हॉर्स? तो इसमें आंसर है द जिन न्यू दैट द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। जिन जानता था कि हॉर्स जो है किस कैमल के बारे में कंप्लेन कर रहा है, बिकॉज ही वॉज द इंचार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स, क्योंकि वह जितने भी डेजर्ट थे, जितने भी रेगिस्तान थे, उन सभी का वो क्या था, इंचार्ज था। एंड न्यू अबाउट एवरीथिंग, और वो सब कुछ जानता था दैट हैपनिंग इन द डेजर्ट, डेजर्ट में जो कुछ हो रहा हो उन सब के बारे में उसे पता था, बिकॉज ही वॉज द इंचार्ज ऑफ ऑल द डेजर्ट्स एंड एज अ रिजल्ट ही न्यू अबाउट द कैमल विच वॉज complained by the horse. Okay, question number 5. The camel was looking at his own reflection in the pool. What does it suggest to you about the camel? इसमें एक लाइन है, एक सेंटेंस है आपके टेक्स्ट बुक में, स्टोरी में, कि जो कैमल है वो अपने रिफ्लेक्शन को पूल में पानी का जो एक तालाब होता है, उस तालाब में देख रहा होता है, अपने आप को देख रहा होता है। तो What does it suggest to you about the camel? तो ये सेंटेंस जब आपने पढ़ा तो आपको क्या पता चला इसके बारे में, आप मतलब कि क्या आपको लगा कि भाई क्या किस टाइप का वो कैमल था? The camel was looking at his own reflection in the pool shows. जो कैमल है वो अपने रिफ्लेक्शन को पूल में देख रहा था, ये दिखाता है कि he was proud of his appearance. मोस्ट लाइकली हिज बैक, कि जो कैमल है जब अपने पूल में वो देख रहा है, इस उसकी जो ये प्रोसेस है देखने का, ये हमें दिखाता है, हमें बताता है कि उसे अपनी अपीयरेंस, अपने जो अपीयरेंस से मतलब जिस प्रकार से वो दिखता था अपनी बॉडी पर, उसे बहुत ही ज़्यादा प्राउड था, घमंड था। ही लाइक्ड एडमायरिंग हिमसेल्फ, और उसे क्या पसंद था, खुद ही प्रशंसा करना, खुद की मतलब की तारीफ करना उसे ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि वो काम तो कुछ करता नहीं था, पूल में बैठा वो खुद को निहार रहा था। ओके, तो देखिए बेटा एक बार, इट्स द क्वेश्चन नंबर 6. द कैमल सेड, हम repeatedly, how did it affect
कैमल है वो बार बार रिपीट करता है किसको, हम को, तो इसका क्या इफेक्ट होता है, कैसा इसका प्रभाव हुआ, उस पर क्या पड़ता है वो बताना है। When a camel said hump repeatedly despite the जिन्स वार्निंग, जब डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, जिन की वार्निंग के बावजूद, जिन ने जब उसे वार्न किया उसके बावजूद भी कैमल लगातार क्या बोलता रहता है, बार बार हम। तो हिज बैक पफ अप, पफ मतलब फूलना, उसकी जो बैक है वो पफ होती गई, फूलती गई, इनटू अ बिग हम्प, और किस में बदल गई, वो किस में फूलती गई, एक हम्प बन गया, एक बहुत ही ऊंचा उठा सा एक एरिया बन गया उसकी बैक पर। ठीक है, तो इसमें यही इफेक्ट हुआ उसकी हम्प बोलने का, बार बार जो हम बोले जा रहा था उसका यही इसका प्रभाव पड़ा कि उसकी बैक पर एक हम्प बन गया, ऊपर उठता होता, पफ होता होता। ओके, बट अकॉर्डिंग टू द जिन वाज द यूज ऑफ द हम्प। अब जब कैमल के ऊपर वो पफ होने लगता है, उसकी पीठ जो है मोटी होती रहती है, ऊपर उठती रहती है, तो अब कैमल को काफी रिपिटेंट फील होता है। तो अब वो पूछता है, कहता है, रिक्वेस्ट करता है कि भाई अब मेरे लिए कुछ बताओ, अब मैं इस हम्प को, इतने भारी हम्प को लेकर मैं कैसे वर्क करूंगा। तो इसमें क्वेश्चन है कि जिन के अकॉर्डिंग उस हम्प का क्या यूज था कैमल के लिए। द जिन assured the camel that the hump was a kind of food reserved for him। जिन जो है उसे एज्योर करता है, उसे निश्चित करता है, विश्वास दिलाता है कि जो ये हम्प है ना उसके ऊपर बना है, ये जो हम्प है उसके लिए भोजन मतलब कि फूड रिजर्व करेगा, फूड मतलब इकट्ठा करेगा यहाँ पर फैट के रूप में। He could live on his hump and would be able to work for 3 days without eating। वह इस हम्प पर मतलब कि इस हम्प के सहारे वह रह सकता है बिना कुछ खाए पिए, मतलब 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए वह काम भी कर सकता है। किसके भरोसे, हम्प, जब तक उसका हम्प है तब तक। ओके, तो ये आपका 7th क्वेश्चन है एंड लास्ट वन 8th क्वेश्चन। वेट, it's the 8th question. He has never yet learned to behave. In the light of this, what is the writer's opinion about the camel? ये लाइन जो इसमें सेंटेंस है, he has never yet learned to behave, कि आज भी वो वर्क करना नहीं सीख पाया, सॉरी बिहेव करना नहीं सीख पाया है, किस तरह से उसे प्रॉपर बिहेव करना चाहिए, किसे, कैमल को। तो इन द लाइट ऑफ दिस, इस पर आप प्रकाश डालते हो, व्हाट इज द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल। जब आप इस लाइन को पढ़ते हो तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि राइटर की जो राय है, राइटर की जो ओपिनियन है वो क्या है, क्या कहना चाहता है वो कैमल के बारे में। अकॉर्डिंग टू द राइटर द कैमल इज स्टिल अ वेरी लेजी एनिमल दैट इज अनविलिंग टू वर्क। अकॉर्डिंग टू द राइटर, राइटर के अकॉर्डिंग, राइटर के अनुसार जो कैमल है वो अब भी बहुत ही लेजी एनिमल है, जो कि क्या करता है, दैट इज अनविलिंग टू वर्क, जो हमेशा ही वर्क, अनविलिंग मीन जिसकी इच्छा ना हो, कि उसको कभी भी वर्क करने की इच्छा नहीं रहती है, जो काम करता है वो अनविलिंग करता है, बिना मन के करता है। तो इसमें राइटर की क्या राय है, राइटर कहता है कि जो कैमल है वो आज भी बहुत लेजी है और बिना मन के वो काम करता है, उसका मन ही नहीं होता कुछ काम करने का। It's for this reason that he was still unable to complete the pending work of those 3 missed days. It is for this reason, और इसका जो रीजन क्या है, that he was still unable, कि वो आज भी लेजी है ना, वो लेजी है, लेजी था, अब थोड़ा करने लगा है, पहले बिल्कुल नहीं किया, वो आज भी लेजी है। इस वजह से क्या है कि जो उसका पेंडिंग वर्क था, कौन सा पेंडिंग वर्क, वो 3 डेज वाला, जब उसने जिन और एनिमल के साथ में काम नहीं किया था ना 3 दिन के लिए, तो वो पेंडिंग वर्क उसका आज भी एज इट इज है, वो काम पूरा नहीं हो पाया है। ठीक है, एंड ही कंटिन्यू कैरिंग द हम्प, और उसी का जो पनिशमेंट है, उसके ऊपर जो पीठ के ऊपर उसका हम्प है, वो आज भी उसको लेकर के कंटिन्यू चलता है। एंड लिविंग इन द डेजर्ट, और आज भी वो एक डेजर्ट में ही रहता है। इट्स बेटा दिस स्टोरी इज अ फैबल, फैबल है ये, इसमें सिर्फ आपको एक लेसन दिया गया है कि हार्ड वर्क कीजिए
और अवॉइड लेजीनेस, आलस है जो आपका आइडलनेस है उसको रिमूव कीजिए अपनी लाइफ से और हार्डवर्क कीजिए। ओके बेटा, एंड thus our revision of this chapter has been completed. Now all the best. Thanks.